کو آپ کے بیچ لانے سے قبل یہ دل چاہتا ہے کہ حضرت مولانا وقاری مظہر صاحب دامت ذلہ کہ جن کی جدوجہد اور کوشش کا وشوں سے یہ اجلاس سجا ہے اور جس بنیاد پر یہ اجلاس سجا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قاری صاحب کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کارخانے کے اندر، اس مدرسے کے اندر کیسے طلباء کو کس سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم چاول خریدنے کے لیے گودام میں پہنچتے ہیں تو گودام کا مالک ساری بوریوں سے چاول ہمیں نکال کر نہیں دکھایا کرتا، بلکہ وہ بوریوں میں سے ایک بوری سے نکال کر چاول دکھاتا ہے، لیجئے صاحب یہ چاول خریدیے، یہ چاول اس طریقے کا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں، چاولوں کو دیکھ کر یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ساری بوریوں میں چاول ایک جیسا ہی ہے۔ تو آئیے ہم ایک نمونہ اٹھا کر آج بطور امتحان یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مظہر صاحب آپ کی بستی میں رہ کر کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے درسگاہ سے ایک ننھی منی سی بچی کو اٹھاتے ہیں جن سے عزیزہ سمرن سلمہ جو بنت عمران کی بیٹی ہے، حالانکہ وہ بچی آپ کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو گھبرا جائے تو آپ یہ یوں مت سمجھنا کہ بچوں کو کچھ پڑھایا نہیں جا رہا ہے۔ دوستو، مائک پر پڑھے لکھوں سے بھی بولا نہیں جایا کرتا ہے، مائک پر بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے بچی کے حوصلے کو افزائی کی جائے۔ بس ایک نعت بادشاہ مفتی صاحب جی امیر جماعت سے پوچھ لو، پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس فکر میں گنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں۔ اس فکر میں گنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں۔ آئین گلستہ کیا ہوگا، دستور بہارا کیا ہوگا۔ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ راتوں کو جب ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، ہر سمت سے حملہ کرنے والے مسلمانوں کے رشتے توڑ کر انہیں بے دست وفا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں تختے دار ہیں تو کہیں جیلیاں، کہیں ہتھکڑیاں، کہیں سازشیں کی جا رہی ہیں، کہیں فتنے، کہیں وارانیت و فحشی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور جو آج چاروں طرف سے گر چکا ہے، چاروں طرف سے وقت کے دجال اس پر حملے آور ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ کہیں اصلاح کے زور پر یہ بدمعاشی رچائی جا رہی ہے۔ کشمیر کی طرف دیکھو، وہاں 7.5 لاکھ زائد انڈے مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ چیچینہ کی طرف دیکھو، وہاں رشیا کی فوج اپنا پنجہ گاڑنے کے لیے ٹینک اور طیاروں میں گھن گرج حملہ آور ہے۔ فلسطین کی طرف دیکھو، وہاں یہودی اور
सऊनी मुसलमानों को ज़िबा करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ देखो, वहाँ वक्त का दज्जाल उतर चुका है, वहाँ इस्लाम का नाम निशान, इल्म का नाम निशान मिटाना चाहता है। इराक के सहराओं की तरफ देखो, नजफ और करबला की तरफ देखो, फौज की गाड़ियाँ चल रही हैं, इंसानियत को सिसकता हुआ छोड़ा जा रहा है। जिस तरफ भी नजर उठाते हैं, स्पेन की तरफ देखते हैं, हमें काटा जा रहा है। बर्तानिया की तरफ देखते हैं, हमें मारा जा रहा है। हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, हमें जलाया जा रहा है। ये सब चीजें अपनी तरफ, उन सब से बढ़कर ये कि हमारा रिश्ता मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काटने की कोशिश की जा रही है। हमारा रिश्ता सिद्दीक़ फारूक आज़म से काटने की कोशिश की जा रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम वाशिंगटन को सजदा करें, न्यूयॉर्क को सजदा करें, हम किसको किबला बनाएं, हमें समझाया जा रहा है। उन उलमाओं को देखकर, इन मदारिसों को देखकर याद रखना, तुम तो उस गलत फहमी में हो के हम खुदा ना खास्ता अल्लाह का कुरान छोड़ देंगे, नबी की हदीस से छोड़ देंगे। तुम तो उस गलत फहमी में हो के हम खुदा ना खास्ता नबी का इस्लाम छोड़ देंगे। तुम तो उस गलत फहमी में हो के हम खुदा ना खास्ता नबी का दीन छोड़ देंगे। आओ उस महफिल में बैठकर देखें कि हमने नबी के अल्फाजों को छोड़ा है नहीं, नबी के अंदाज़ और लहज़ा को छोड़ा है नहीं। नबी ने जैसी हदीस पढ़ाई थी, आज वैसे ही हदीस पढ़ाई जा रही है। नबी ने हदीस पढ़ाते वक्त सहाबियों को ज़मज़म पिलाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाते वक्त ज़मज़म पिलाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाते वक्त ज़मज़म पिलाया। हमने नबी के दावों को महफूज रखा, हमने नबी के अफ़कारों को महफूज रखा है। अपने माँ बाप के नाम न जानने वालों, और हम तुम्हें 50,000 रावियों के नाम बताएंगे, उनकी हालतें बताएंगे, उनकी जिंदगी बताएंगे, उनकी सुबह व शाम बताएंगे। तुम्हें तो अपने माँ बाप का नाम मालूम भी न होगा। हाय, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल बदली जा सकती है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बदला जा सकता है। जहाँ मेरे नबी का ज़ार था, देख लो उन उलमाओं की शलवारों तक है। नबी सर पर जो कुछ देकर गए थे, वहीं पे सलवार है, वहाँ पर टोपी है। तुम ये समझते हो कि तुम्हारी तरक्की की वजह से हम तुम्हारे पीछे पड़ेंगे तो हमें रोजी मिलेगी? याद रखना, अल्लाह ने सुब्हानल्लाह के कलमे पर रोजी रखी है, अल्लाह ने नबी के कदमों में रोजी रखी है। अगर तुम्हें रोटी न मिलती, अगर तुम्हें नबी के कदमों में रोटी न मिलती तो तुम रोटियां तो कम कर सकते थे, लेकिन वो पत्थर कम नहीं कर सकते जो नबी ने अपने पेट पर बांधा था। वो पत्थर तुम कैसे कम कर सकोगे? जिन लोगों की रातें नाइट क्लबों में गुजरती हैं, उन्हें परेशान करो। जिन लोगों को चटाई पर रोना है, उन पर तुम्हारे बातें कैसे असरअंदाज होंगी? याद रखना, ये चटाई पर रोने वाले, ये वक्त गुजारने वाले वो लोग होंगे कि जब इस्लाम पर हमला होगा तो खड़े होकर हिफाजत करेंगे। कभी मिंबर पर, कभी मेहराब पर, कभी मुनाज़रे के स्टेजों पर, कभी जलसे आम में, कभी महफिलों में, कभी मजलिसों में यही हजरात नजर आएंगे। सुन लो, हमारे नबी की वफात पर खुशियां मनाने वालों, तुम्हें नबी हर कदम पर जिंदा नजर आएंगे, हर काम पर जिंदा नजर आएंगे, हर जगह नजर आएंगे। तुम्हें कहीं मायूस नहीं होने देंगे। अपने बेटों को स्कूल कॉलेज की गलाजत में डालने वालों, खुदा की कसम, अगर तुम्हें किसी तालिब इल्म की अज़मत का पता चल जाता, तुम्हें किसी हाफिज़ कुरान की अज़मत का पता चल जाता, तो तुम अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को स्कूल के काले दरवाजे पर नहीं भेजती, मदारिस के दरवाजे पर आकर पड़ जाते। सहाबी एक एक हदीस के लिए हजारों सैकड़ों मीलों का सफर करते थे, महीनों महीनों का सफर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस्लाम इल्म जिंदा है तो दीन जिंदा है, और जब इल्म मिट जाएगा तो दीन मिट जाएगा, और जब दीन मिट जाएगा तो अल्लाह ताला जमीन को बर्बाद कर देगा। उस दिन दुनिया को कायम रखने वाली चीज सिर्फ कुरान है, सुन्नत का इल्म है, किताब का इल्म है, फिक़ह का इल्म है। इन उलूम की बरकत है कि बारिश बरस रही है, इन उलूम की बरकत है कि चांद चांदनी दे रहा है, इन उलूम की बरकत है कि जमीन से गल्ला निकल रहा है। खुदा की कसम, अगर ये उलमा खत्म हो गए तो लोग जाहिलों को अपना सरबराह बना लेंगे, जबकि ज़िना आम हो जाएगा, गाने बजाने आम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर रहने वालों को कुत्ते और खंजीर की शक्ल में बदल देगा।
हम लोगों को क्या पता कुरान क्या है, वो गिलाफ में बंद कर चूम कर ऊपर रखने वालों को क्या पता कि रब सूरह फातिहा में क्या कहता है, सूरह बकरा में क्या कहता है। मालूम नहीं आज के मुसलमानों की जिंदगी क्या है, न हराम का पता है न हलाल का पता है। अता सारे झूम झूम के सुनते हैं, ये नहीं देखते कि आसमान से किस वक्त कैसा अजाब नाजिल हो रहा है। चंद मुहाफिज लोगों ने जिनके पास सुन्नत का इल्म है, फिक़ह का इल्म है, कुरान का इल्म है, उन्होंने सर पर बोझ लाद कर जवान हुए और रातों को जाग कर जवानी को पूरा कर दिया, लेकिन अपने रब का एक हर्फ जाया होने न दिया, एक अलिफ तक जाया होने न दिया। आज चंद मुहाफिज खड़े होकर कुरान के गलत नुस्खे को छाप दिया। हमारे एक आलिम रब्बानी ने खड़े होकर चैलेंज कर दिया, ये रातों को जागने वाले लोग थे, ये नाचने वाले लोग नहीं थे, ये कुरान की हिफाजत करने वाले लोग थे। मुसलमानों, अगर तुमने इन उलमाए की कदर ना की, उन उलमाए की हिफाजत ना की, उन उलमाए के साथ अपने हाथ न मिलाए तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आज चंद मुहाफिज खड़े होकर एक ही ऐलान करते हैं कि इस्लाम जिंदा है, इल्म जिंदा है, फिक़ह और हदीस जिंदा है, कुरान जिंदा है। हमारी जिंदगी तो खत्म हो सकती है, लेकिन नबी के उलूम में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। सुन लो मुसलमानों, जब तुम्हें यही पता नहीं कि कुरान है क्या, तो कौन जान देगा, कौन हिफाजत करेगा, कौन रातों को जागेगा, कौन उसके शान नुज़ूलों को ढूंढेगा, कौन उसके नास को मंसूख में गौर करेगा, कौन उसकी इबारतों को दुनिया के सामने खड़े होकर सुनाएगा। मुसलमानों, जब तुम्हें यही पता नहीं कि कुरान है क्या, मालूम नहीं आता, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।